નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં. અને લોકમંચમાં આજે વાત કરીશું ખાલિસ્તાનીઓની, અમૃતપાલની. કારણ કે અમૃતપાલની બબાલ હવે વિદેશોમાં પણ પહોંચી છે. પંજાબથી લઈને અમેરિકા, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સુધી આ બબાલ જ્યારે પહોંચી છે, ત્યારે ખાસ પંજાબમાં જે ખાલિસ્તાનીની માંગ સાથેનો જે બળવો ચાલી રહ્યો છે, આ બળવો આજકાલનો નથી, વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે. ખાલિસ્તાન ચળવળ એ ખાલિસ્તાન નામનો એક અલગ દેશ જે બનાવવાની ચળવળ છે, અને આજકાલની વર્ષોથી આ ચળવળ એટલા માટે ચાલે છે કે જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા ત્યારે જે શીખ લોકો હતા એમને એમ હતું કે ભારત કે પાકિસ્તાનમાં અમને અલગ જગ્યા નહીં મળે, એટલે ત્યારનું આ ચળવળ જે ચાલે છે, અલગ ખાલિસ્તાનની માંગની ચળવળ. અને ખાસ તો પંજાબના જે વારિસે પંજાબ દેશ સંગઠન છે એના પ્રમુખ અમૃતપાલે આ ચળવળને હમણાં ફરી એકવાર તેજ કરી છે. અને અમૃતપાલ વિરુદ્ધ પોલીસે પણ એક અભિયાન ચલાવ્યું છે. જ્યારે આ ચળવળની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારબાદ 1984માં જ્યારે મુખ્ય પ્રધાન તરીકે એટલે કે પ્રધાનમંત્રી તરીકે ઇન્દિરા ગાંધી હતા, ત્યારે 1984માં ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર અને 1986માં પણ ઓપરેશન બ્લેક થંડર આ ચળવળને દબાવી દેવા માટે આ બંને ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા હતા. ખાસ તો અમૃતપાલ પર જે બબાલ છે પંજાબથી લઈ હવે વિદેશમાં પહોંચી છે, અને અમૃતપાલ સિંહને વિદેશમાં વસતા ખાલિસ્તાની જે સમર્થકો છે એમનો પણ ક્યાંક સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. ને એના તરફથી બ્રિટન, અમેરિકા કે કેનેડા જેવા દેશોમાં અમૃતપાલની ધરપકડ ન થાય. હાલમાં એ ફરાર છે, પોલીસે અભિયાન ચલાવ્યું છે, પરંતુ એની ધરપકડ ન થાય એના વિરોધમાં પણ ક્યાંક જે ખાલિસ્તાની સમર્થકો છે હંગામો કરી રહ્યા છે. અને એને જ લઈને બ્રિટનમાં બ્રિટિશ હાઈ કમિશનની ઓફિસ બહાર તેમણે તોડફોડ કરી, ભારતીય તિરંગો ઉતારી એમણે ખાલિસ્તાનનો તિરંગો લગાવ્યો હતો. અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં પણ ભારતીય કોન્સ્યુલેટમાં તેમણે તોડફોડ કરી છે. એને લઈને ભારત અને અમેરિકાના રાજદારી સંબંધો પર તો ખાસ અસર નહીં થાય, પરંતુ ભારતે બ્રિટન પાસે આ સમગ્ર મામલે સ્પષ્ટીકરણ પણ માંગ્યું છે. અને સાદિક ખાન લંડનના મેયર છે, એમણે તો કહ્યું છે કે આવી ઘટનાઓને લંડનમાં કોઈ સ્થાન જ નથી. એટલે ખાસ આ ખાલિસ્તાની ચળવળને અમૃતપાલને લઈને જે વિદેશમાં બબાલ ચાલી રહી છે એને મુદ્દે લોકમંચમાં ચર્ચા કરવી છે. ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે દિલ્હીથી વરિષ્ઠ પत्रकार संजय तिवारी मारी साथ जोड़ा है. संजय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में. और साथ में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे हर्षवर्धन पांडे दिल्ली से जुड़े. हर्षवर्धन जी, आपका भी स्वागत है जी. संजय जी, सवाल यह है कि खालिस्तान अभियान को भारत में समर्थन जो मिल रहा था, पंजाब में समर्थन मिल रहा था, विदेशों में भी इसका समर्थन हो रहा है, काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और खास तो अमृतपाल को लेके जो हंगामा मचा है, किस नजरिए से देखते हैं आप? दिलीप भाई, ये मामला जितना छोटा या जिस रूप में दिखाया जा रहा है या चैनलों पे जो बातें आ रही हैं, सिर्फ उतना नहीं है. इस मामले की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 1956 और उससे पहले 1948 तक से जुड़ी हुई है. ये खालिस्तान मूवमेंट जो शुरू होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में शुरू हो गया है. लेकिन ठीक है, इसका एक बड़ा पड़ाव था जब भिंडरावाले वाली घटना हुई थी, और भिंडरावाले को मारने के लिए और उनको घेरने के लिए, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए देश की सरकार ने बहुत कुछ किया था, और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी जान तक देनी पड़ी थी. देखिए, दिक्कत ये है हमारे यहाँ कि जब भी भारत सशक्त होने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया को ये लगने लगता है कि भारत ज्यादा सशक्त होगा तो दुनिया के वे ताकतवर देश जो अभी तक अपनी चौधराहट चलाते हैं उनको नुकसान होगा. वे भारत को इसलिए कहीं ना कहीं से अस्थिर करने की कोशिश करते हैं. अमृतपाल एक बहुत छोटा प्यादा है, बहुत बड़ा प्यादा नहीं है. अमृतपाल के पीछे जो पूरी टीम है, जो पीछे पूरा नेटवर्क है, आप बीते दिनों में अभी ढेर सारी पत्र पत्रिकाओं में जाएंगे, उससे पहले भी जाएंगे, तो कनाडा में, जैसे अभी आपने नाम लिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और भी जगहों पे रह करके जो लोग इस अभियान को चला रहे हैं, उनकी करतूतों को देखने की जरूरत है. उनके कृत्य क्या हैं. 1984 और 1986 में जो बचे हुए लोग थे, जो कनाडा या बाकी विदेशों में जाके रह के वहां से अपना काम संचालित कर रहे थे, एक तरफ उन लोगों की टीम है, दूसरी तरफ अमृतपाल जैसे लोगों की एक नई टीम खड़ी हुई, नई फसल खड़ी हुई, जिसमें एक दीप संधू भी था जो लाल किले वाली घटना में था. और इनको एक बड़ा बहाना मिला था, किसान आंदोलन. जी, यहाँ
यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पंजाब में ये स्थिति तभी क्यों आई है जब आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी है। बिल्कुल। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी खराब स्थिति नहीं थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां चला रहे थे तो इतनी खराब स्थिति नहीं थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वयं खालसा पंथ से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी थे इसलिए खालसा नहीं है, इसलिए वो पंजाबी नहीं है। आजकल कैप्टन साहब बाहर हैं। देखिए दिक्कत यहाँ ये है, यहाँ पर इसको देखना ये पड़ेगा कि जो दिल्ली है हमारी, दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से दिल्ली से रणनीति बन रही है। दिल्ली में घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार एक अभियान चला रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और वहां पर जो स्थितियां हैं पंजाब में, मतलब युवाओं को जो वहां पे वादे किए गए थे, जिन वादों पे चुनाव लड़े गए थे, वे कोई वादा पूरा होने की स्थिति तो है नहीं। तो वहां के मुख्यमंत्री आते हैं देश में, यहाँ दिल्ली में गृह मंत्री जी से मिलते हैं, फिर वो लौट के जाते हैं। दीप सिंधु वाली घटना होती है, उसके बाद ये अमृतपाल की घटना आ जाती है। मैं अमृतपाल के पिता का इंटरव्यू सुन रहा था अभी, एक सेकंड लेना चाहूंगा। अमृतपाल के पिताजी का कहना है कि हमारा कारोबार तो जी दुबई में था और दुबई से हम फिर यहाँ लौट के आए हैं गांव में। ये सोचने की बात है, ये बिल्कुल मतलब एक विश्लेषण करने की बात है कि जो परिवार 84 दंगों के बाद दुबई चला गया, दुबई में उनका कारोबार है, दुबई में उनको बड़े कारोबार है, छोटा कारोबार नहीं है, कोई छोटे लोग नहीं है, खाने पीने के मोहताज लोग नहीं है। बिल्कुल। और दुबई से ये लड़का अपने गांव आता है, गांव में आके ये खालसा पंथ के लिए अमृतोत्सव करता है। ये अमृत वाला एक जो उत्सव इन लोगों के यहाँ होता है वो करता है कि हम युवाओं को खालसा पंथ में वापस लाएंगे। और फिर उसके बाद ये भिंडरा वाले के रिकॉर्डेड वीडियोज वायरल करता है। और भिंडरा वाले के रिकॉर्डेड वीडियोज के साथ साथ ये भिंडरा वाले की जो वेशभूषा, कार्यशैली, उनकी जो उसकी जो भारत विरोधी छवि थी, भारत विरोधी गतिविधियां थी, उसी को लेके आता है सामने। और ये पिछले 4-5 महीनों में पंजाब में बहुत बड़ा एक कुनबा अपना बना लेता है। ये एक दिन में थोड़ा हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा, इसके पीछे लंबी साजिश है। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी का जो मतलब यहाँ पे जो उल्लेख किया, आम आदमी पार्टी की सरकार हुई और ये आंदोलन फिर से एक बार शुरू हुआ, ये मूवमेंट शुरू हुई, क्या इसके पीछे आम आदमी पार्टी का कोई मतलब सपोर्ट या साथ है, ऐसा कुछ दिखता है आपको? देखिए ये तो जांच एजेंसियों की बात होगी, भारत सरकार और भारत सरकार की जांच एजेंसियां इस पे जांच करके कुछ न कुछ निकाल रही होंगी या खोज रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सतह पर एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में हम इतना विश्लेषण तो करने की स्थिति में हैं कि पंजाब में तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक कांग्रेस की सरकार चल रही थी या अकाली और भाजपा की सरकारें थी या इस तरह की सरकारें चल रही थी। 84 के बाद ये पहली बार ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी तरफ पंजाब में आतंकवाद सिर उठाने लगता है। और इतना सिर उठा ले जाता है कि उसमें आज अमृतपाल की जैसी घटना हो गई है, सामने दिखाई पड़ रही है। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि अमृतपाल के 100 से ज्यादा साथी जेल जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। पंजाब पुलिस ने ही पकड़ा होगा, लेकिन अमृतपाल को भागने के वीडियो तो जारी कर रही है पुलिस कि वो पहले ब्रीजा कार में गया, फिर उसके बाद दूसरा कार बदला, फिर उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे जाता है, वो गुलाबी रंग की पगड़ी धारण करता है, नीली पगड़ी हटा देता है, फिर वो अपने केस कटवा लेता है। तमाम तरह की चर्चाएं, कहानियां, दुनिया भर की चीजें दिखाई जा रही है। मतलब एक संदेह उठना स्वाभाविक है कि पुलिस 100 लोगों को गिरफ्तार कर ली, वे नहीं भागे, और एक आदमी जो उनका मुखिया है, जो उनका सरगना है, वो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके गाड़ी बदलने तक की सूचना पुलिस को है कि वो मर्सिडीज से ब्रीजा में आता है, ब्रीजा से फिर वो 2 मोटरसाइकिलों पे जाता है। उसके फुटेज चल रहे हैं, मैंने देखा टेलीविजन पे, कई चैनलों पे। ये मतलब ये पुलिस के लिए, पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल नहीं उठ रहा है क्या? बिल्कुल उठ रहा है। आज जो है पंजाब की गवर्नमेंट ने उन पे एनएसए लगाया है। ये काम तो कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था। तो ये 5-6 दिन से जो चीजें चल रही हैं, जो घटनाक्रम दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये मतलब ये तो स्पष्ट हो गया, देश की जनता देख रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से बाहर की शक्तियां इन्वॉल्व हैं। अब बाहर की शक्तियां भारत के ऐसे मामले में क्यों इन्वॉल्व होंगी? स्वाभाविक है कि भारत को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश विदेशों में रची जा रही है। बहाना खालसा पंथ आ गया है, बहाना खालिस्तान आ गया है।
खालिस्तान को न बनना है, कोई इसकी बिल्कुल नहीं। संभावना, ठीक है। लेकिन खालिस्तान के बहाने भारत को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अस्थिर करने की एक भरपूर कोशिश है, क्योंकि भारत में भी चलो संजय जी, 2024 आपने के जो लोकसभा बताया चुनाव। कि बाहर की शक्ति अभी कुछ इसके पीछे काम कर रही है, हर्षवर्धन पांडे, जिस तरह मोहाली में ये मूवमेंट चली, हर्षवर्धन जी, मोहाली में रास्ते बंद किए गए, लंदन में जो हाई कमीशन और अमेरिका में सन फ्रांसिस्को के भारतीय दूतावास पर हमला हुआ, तोड़फोड़ भी हुई, सोशल मीडिया में भी हंगामा मचा, ज्यादा असर कनाडा में देखने को मिला। हर्षवर्धन जी, क्या लगता है इसके पीछे ये जो बाहर की शक्तियां क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है? देखिए, जैसा संजय भाई ने कहा, दिलीप भाई, उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। जब जब भारत जो है वो सशक्त होने की दिशा में बढ़ता है तो विदेशी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। और 2024 का चुनाव भी पास है, इसे देखते हुए भी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जहां तक आपने कनाडा की बात की है, तो कनाडा में बड़े पैमाने पर जो है वो पंजाबी जो है वो बसे हुए हैं। और हम्म। आपको याद होगा कि जो चुनाव हुआ था पंजाब का, और उससे पहले दिल्ली का चुनाव हुआ था, ये गुजरात का हुआ था, इसमें भी ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर जो है खालिस्तान का पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च किया है, क्योंकि बड़ी तादाद जो है वो कनाडा में जो प्रवासी बसे हुए हैं वो उसकी फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म। इसके तार जो है इससे भी जुड़े हुए नजर आते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ, विदेशी ताकतों के साथ जो है पाकिस्तान जो है भारत में येन केन प्रकारेण अशांति फैलाना चाहता है। और इसके जो तार है बब्बर खालसा और आईएसआई से भी जुड़े दिखाए जा रहे हैं, जो मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जांच एजेंसियों का विषय है कि वो उस पर जांच वगैरह करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद, जब भी जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अशांति फैलाना चाहता था, लेकिन वो एक तरह से मतलब सफल नहीं हो पा रहा है। अब उसने पंजाब को निशाना बना दिया है। और खालिस्तान समर्थक जसवंत सिंह ठेकेदार को यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वो एक बहुत अहम है, उसने जो है पूरे भरोसे के साथ ये कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जो है पंजाब में सिखों को जो है टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो पंजाब में आज जो कुछ भी हो रहा है, राज्य सरकार उससे निपटने में सक्षम नहीं है। और कहने कि कनाडा में जो खालिस्तानी है वो भी कहीं ना कहीं उसको जो है मदद पहुंचा रहे हैं। और राज्य सरकार, राज्य की जो पुलिस है वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं वहां। जैसा कि संजय भाई ने कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि आपको अगर सितंबर में अमृतपाल आता है भारत, और आते आते 2-3 महीने में आपको उसको अरेस्ट करने में जो है इतने दिन लग जाते थे, महीने लग जाते हैं, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं पुलिस का प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, जिसके चलते जो है ये मामला बढ़ रहा है। और कोई ये छोटा मोटा मामला नहीं है दिलीप भाई, इसकी तहें बहुत बड़ी हैं। और एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एंटी इंडिया मूवमेंट एक तरीके से, मतलब विदेशी ताकतों की मदद से जो है यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत बड़ा वितंडा जो है खड़ा हुआ है। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, जिस तरह से जो संजय जी ने बताया कि 100 से अधिक लोगों को पकड़ा जा सका है, पर अमृतपाल जो अभी तक हाथ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी कोई साजिश लग रही है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी पुलिस है, आईबी है, सुरक्षा कर्मी है, फिर भी एक आदमी नहीं पकड़ा जा सकता। आप ये देखिए कि उनके जो साथ के हैं वो 114, 100 से ऊपर के आसपास, 114 के आसपास हाँ। के जो लोग हैं वो पकड़ लिए गए हैं। ठीक है। और आप ये देखिए कि पुलिस आपकी कब सक्रिय होती है। पुलिस आपको अभी 16 तारीख को ही जो है वो एफआईआर दर्ज कराती है। ये काम तो आपका पहले से ही हो सकता था। और इतने टाइम से वो क्या कर रहा था, वो आता है दुबई में अपना जो भी उसका सेटअप वेटअप है, वहां से लौट के वो आपका गांव आता है। और आज अभी मैं देख रहा था, अमृतपाल के पिता ने ये कहा कि उसका जो है उसका जो है एक तरीके से एक अलग तरह की उन्होंने उन्होंने बयानबाजी वगैरह भी की है। उनका जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा मतलब वो बन रहा है। उसको देखते हुए उनका जो है या तो अपहरण वगैरह भी किया जा सकता है, या किस तरह की अलग अलग तरह की बातें कहने को देखने को मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो है आपका। ऐसी क्या वजह है कि आप 114 लोगों को पकड़ लेते हैं और वो आपकी पकड़ से बाहर है, और आप देख रहे हैं उसके फुटेज वगैरह चल रहे हैं। वो एसयूवी कार वगैरह में देखा गया है, पुलिस 25 किलोमीटर तक उसका पीछा कर रही है, फिर भी वो आपकी पकड़ में नहीं आ पा रहा। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। और इसको जांच एजेंसियों का ये विषय है, ये मामला जो है उसको देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है इस मामले पे। लेकिन ये इतनी जल्दी ये मामला जो है खत्म नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। चलो बिल्कुल, संजय जी, क्या लगता है, अब मान लो कि पंजाब सरकार कुछ कर नहीं रही है या उसको पकड़ नहीं रही है, कुछ भी हो, मगर जिस तरह से वारिस पंजाब देश संगठन के जो प्रमुख है अमृतपाल, वो जो उनका धरपकड़ करने का एक अभियान तो चल रहा है, पर दिख रहा है कि ये दिखावा हो सकता है। अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है, अलगाववादी नेता है, फिर भी इसकी धरपकड़ नहीं हो रही। और एक धमकी अमृतपाल ने दी थी क्या? एक बात चल रही है कि अमित शाह को धमकी दी थी कि इंदिरा गांधी जैसा हाल अमित शाह का होगा। जी, ये बयान उसने दिया था। हम्म। और
इस बयान को सरकार ने गंभीरता से लिया भी था। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक अमृतपाल पैदा हो गया है। अमृतपाल को पैदा किया गया है, और अभी ये अकेला अमृतपाल नहीं है, अभी बहुत से अमृतपाल हैं। जिस तरह से अमृतपाल के पीछे पंजाब पुलिस की कार्रवाई दिख रही है, इस बात की भी मुझे आशंका हो रही है कि हो सकता है भारत से पाकिस्तान की सीमा सड़क सीमा है और मोटरसाइकिल से वो गया है, और यदि अभी जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे और खबरों में भी आ रहा है कि आईएसआई उसको सपोर्ट कर रही है, तो आईएसआई सपोर्ट करके उसको पाकिस्तान के अंदर ले सकती है। अगर वो पाकिस्तान में चला गया होगा तो कितना बड़ा खतरा वहां से पैदा करेगा, ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात कि भारत की जो इस समय स्थिति है, भारत के संकेत पर दुनिया चल रही, भारत के संकेत पर दुनिया अमल कर रही, भारत के नेतृत्व को दुनिया अपना नेता मान रही है। ऐसे में भारत को अस्थिर किए बिना जो बड़े चौधरी लोग हैं, उन चौधरियों का कुछ भला नहीं होने वाला। आप देखिए ना स्थिति क्या है। पंजाब के इस घटना को केवल पंजाब में मत देखिए और केवल भारत में मत देखिए, इसको थोड़ा ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां यूक्रेन का राष्ट्रपति रूस का नाम बदलने की बात कर रहा है। आप सोचिए कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। वो कह रहा है कि रूस का नाम बदल दो, इसका नाम सोवियतो होना चाहिए। दूसरा, नहीं, मॉस्कोवो होना चाहिए, क्योंकि पहले उसका नाम कभी मॉस्कोवो रहा होगा 1000 साल पहले। दूसरे देश का राष्ट्रपति दूसरे देश का नाम बदलने की बात कैसे कर सकता है? तो विश्व में तरह तरह की घटनाएं हैं। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान इस समय भिखमंगा है, पाकिस्तान भिखारी से भी बदतर हालात में, पाकिस्तान में लोग खाने बिना बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मौका है कि भारत के ऐसे दुश्मन को यदि वो अपने साथ लेता है, उसकी ताकतें जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन में बैठी हुई हैं, वो पाकिस्तान से कहीं उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म बना के, तो भारत में एक अस्थिरता फैलाने की, अस्थिर माहौल बनाने की एक कोशिश उनकी कामयाब हो सकती है, ऐसा उन्हें लगता है। तो संजय जी, भारत सरकार चुप रहेगी, माना कि पंजाब मैं सरकार, वही बात कह रहा हूं कि भारत के बारे में, लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी है। भारत अब उस दौर में है जब भारत में कहा जाता है कि जो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा, जो भी करेगा, हम घुस के मारेंगे। इस तरह की बातें हमारे यहाँ आ चुकी हैं और हमने करके दिखाया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक ये मान लीजिए, जो पाकिस्तान अगर सपोर्ट भी कर रहा होगा उसको, तो अब ये पाकिस्तान के लिए समझ लीजिए कि अंतिम घड़ी वाली स्थिति है। क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है, चाहे वो पख्तून की बात हो, चाहे वो उसके बाकी जो दूसरे राज्यों में चल रहा है, सिंध में चल रहा है, ये सारे के सारे जो वहां घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं। भारत के लिए पंजाब एक राज्य है और पंजाब में अस्थिरता भारत सरकार बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेगी। संजय जी, दीप सिद्धू की जो मौत हुई, वो मौत का राज क्या है? क्योंकि किसान आंदोलन के दरमियान उस वक्त अकस्मात में उसका निधन हुआ था, पर राज ही रह गया है। देखिए, इस समय यदि आप भारत की खबरों को देख रहे होंगे और खबरिया चैनलों को देख रहे होंगे, तो जितने भी समाचार चल रहे हैं वो 2-3 खबरों को लेकर चल रहे हैं। एक, दीप सिद्धू की मौत, उसका राज। दूसरा, मूसेवाला, एक जो म्यूजिशियन वो था, गायक था, उसकी मौत, और उसके मौत के बाद जो ढेर सारा वितंडा खड़ा हुआ और सलमान खान से लेके सारे लोगों को धमकी, और जो जेल से इंटरव्यू दे रहा है उसका अपराधी, उसका मर्डरर, और बाकायदा वो इंटरव्यू टीवी चैनलों पे प्रसारित हो रहा है घंटों घंटों। पंजाब में आखिर ऐसा क्या हो गया है? ये एक विचार करने की बात है कि पंजाब पूरा भारत के विरोध में क्यों खड़ा हो रहा है। पंजाब को क्या चाहिए? पंजाब को कब सम्मान नहीं दिया भारत ने? पंजाब को पंजाबियत के लिए अलग पंजाब राज्य दे दिया गया, हरियाणा हिंदी भाषियों को अलग कर दिया गया, और लोग ये इनका दावा है कि भाई यहीं से आपने बेईमानी कर दी। भाई, जो पंजाब पाकिस्तान ले गया, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं छीन रहे हो तुमको खालिस्तान चाहिए तो असली पंजाब तो पाकिस्तान लेके चला गया, उससे छीनो, वहां लड़ाई करो। ये युद्ध जो यहाँ पंजाब, भारत वाले हिस्से के पंजाब में हो रहा है, ये तो सिंध और पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया वहां के लिए होना चाहिए था। लेकिन पूरा एक नैरेटिव बना दिया गया, चाहे कनाडा में बैठ के बना हो, चाहे लंदन में बैठ के बना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, और इन 3 देशों का ही नाम आ रहा है, चौथे किसी देश का नाम नहीं आ रहा है। कनाडा वही देश है जहां आम आदमी पार्टी के उदय से पहले आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेता कनाडा ही जाते थे, वहीं से फंड रेज करते थे,
और वहां से वो लौट के आते थे और भारत में आंदोलन के लिए रास्ता तैयार करते थे। उसमें से एक नेता तो आजकल गायब है, दूसरी बिल्कुल। जगह है, ठीक है, और एक नेता जेल चले गए और एक नेता मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इन लोगों के पुराने बयानों को देखिए ना, इन लोगों के पुराने कनेक्टिविटीज को देखिए ना। मैं तो कहता हूं भारत सरकार को चेक करा लेना चाहिए कि ये जो आम आदमी पार्टी के अभ्युदय से पहले जो ये तीनों चारों बड़े लोग थे, 3 लोग, ये कनाडा क्यों जाते थे बार बार? कनाडा से क्या कनेक्शन था इनका? कोई इनकी रिएक्शन भारत सरकार का क्यों नहीं है? अमित शाह या नरेंद्र मोदी का या सरकार की ओर से कोई रिएक्शन इसके बारे में? मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं होगी। हम्म। मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार की जो कार्यशैली है, वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, और के खास तौर से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन दोनों की कार्यशैली अलग है। इनको डिकोड कर पाना बड़ा कठिन है। ये मतलब अखबारी मानसिकता के वश की बात नहीं है कि इन लोगों को डिकोड किया जा सके। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, मैं आखिर में ये पूछूंगा कि भारत में अलग खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो थोड़े साल पहले, मतलब अभी से मतलब शुरू हुई है, पर बीच में कुछ नहिवत थी, शांत हो गई थी बिल्कुल ये मूवमेंट, और विदेश में एक प्रोपेगेंडा की तरह से ये मूवमेंट चालू हुई है फिर से एक बार, और खालिस्तानी समर्थकों ने पाकिस्तान में शरण ली थी, ऐसी सब जो बातें हैं। तो पाकिस्तान का सपोर्ट इस मूवमेंट को आप देखते हैं? बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज और कह रहा हूँ, संजय भाई बातें बता रहे थे, बहुत सही बातें उन्होंने की, उनसे सहमत हूँ। मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पर जो है दिलीप भाई, सिक्कों का इस्तेमाल एक तरह से टूल किट की तरह करना चाह रहा है, और इसी कारण यही कारण है कि वो इस आंदोलन को बहुत ज्यादा हवा दे रहा है। मैं आपको अभी बताता जसवंत सिंह ठेकेदार के बारे में, जो खालिस्तानी समर्थक है। 2013 में लंदन में वो एक इंटरव्यू देता है और वो कहता है कि सिख जो है वो भारत में जो है दोयम दर्जे के नागरिक हैं, तो उन्हें एक अलग देश मिलना चाहिए। ये बयान आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा बयान है, और इसकी गूंज आप सुन सकते हैं। और हाल में जो घटनाएं घट रही हैं, इसे देखते हुए भी इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं जो है भारत के में नेताओं और बड़े राजनेताओं की टारगेट किलिंग की साजिशें जो है आईएसआई द्वारा तैयार की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और भारतीय खुफिया एजेंसियों को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इसके तार जो है कोई यहाँ नहीं, विदेशों से जुड़ रहे हैं, साथ में सीमा पार से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि 550 किलोमीटर लंबी आपकी सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच की। तो कहीं ना कहीं ये भी है। और आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा विदेशी फंडिंग की बात पहले ही आ चुकी है, उसमें कोई छिपाने लायक बात नहीं है, ये पहले हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी 2017 के आसपास, तो उसके नेता अरविंद केजरीवाल और कई लोग जो खुद मोहाली वगैरह में रुके थे, ये कोई बात छिपी नहीं है, ये जांच एजेंसियों के लिए जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता है, और सरकार को इस गंभीरता को जो है समझने की आज बहुत ज्यादा क्या लगता है हर्षवर्धन जी, क्या लगता है जिस तरह अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मान लो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, पर भारत सरकार को इसकी कितनी असर दिखाई दे रही है, और क्या इसका अंदरूनी अपना जो पॉलिटिक्स है उस पर कोई इफेक्ट आएगा? ये पढ़ देखिए, अभी ये तो कह पाना कोई भविष्यवाणी वाली बात होगी कि आगे को क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव वगैरह पास आते जाएगा, ये मुद्दे वगैरह जो है तूल पकड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो लंबा समय है चुनाव वगैरह होने में, लेकिन ये बहुत बड़ा, इसके पीछे मतलब बहुत बड़ी साजिशें हैं, और भारत को अस्थिर करने की साजिशें जो है वो विदेश के स्तर पर की जा रही है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को आप अस्थिर करने की बार बार कोशिशें कर रहे हैं, वो बात छिपी नहीं है। उसमें हमारे विपक्षी नेता जो राहुल गांधी जैसे हैं, वो विदेश में जाके जो है सरकार का की छिछलादारी करके आते हैं और वापस लौट आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसकी गंभीरता को भारत सरकार को जो है समझना पड़ेगा, और जांच एजेंसियों को भी बहुत मुस्तैदी के साथ दिलीप भाई सक्रियता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर पर इसकी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। ચલો બિલકુલ, જે કહેવાય કે વિશ્વ સ્તરે આની જયારે સાચીસ એટલે કે કાવતરું રચાઈ રહ્યું છે, ત્યારે જે પ્રમાણે સંજય તિવારીજીએ કહ્યું એમ કે ભારતના પ્રધાનમંત્રી ને ગૃહમંત્રી ભારતના અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી એટલા સક્ષમ છે, પણ અમૃતપાલ અચાનક પેદા નથી થયો, અને ખાસ તો જો અમૃતપાલ અત્યારે પોલીસના સકંજામાં નથી આવ્યો, પણ જો એ ભાગીને પાકિસ્તાનમાં ગયો હોય તો એક મોટો ખતરો બની શકે છે. અને આ મુવમેન્ટ 1948 થી 1956 થી આ મુવમેન્ટ ચાલી રહ્યો છે. વચ્ચે આ મુવમેન્ટ શાંત થઈ ગઈ હતી, ઓપરેશન બ્લુ સ્ટાર અને ઓપરેશન બ્લેક થંડર જે ચલાવવામાં આવ્યું હતું, ને ત્યારબાદ આ મુવમેન્ટ શાંત હતી. ફરી એકવાર જયારે આ મુવમેન્ટ શરૂ થઈ છે, એટલે ક્યાંક ભારત જો તાકાતવાર થાય તો કદાચ વિદેશી શક્તિઓ સક્રિય થતી હોય છે, ને એવી શક્તિઓ જયારે સક્રિય થઈ રહી છે, ત્યારે અમૃતપાલ જે સંજયજી ઘણા બધા કારણો છે, અને ક્યાંક પંજાબ સરકાર પણ આના માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે.
પણ આવનારા દિવસોમાં અમૃતપાલનું શું થશે અને સરકાર કયા એક્શન લેશે એ જોવાનું રહ્યું. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ અને ચર્ચામાં ભાગ લેવા બદલ સંજય તિવારી, હર્ષवर्धन पांडे दोनों उपस्थित रहे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી અમૃતપાલની વાત કે અમૃતપાલની વાતને વિદેશોમાં હવે બબાલ, પણ ભારત સરકાર હવે લેશે આ અંગે કોઈ એક્શન કે કેમ? જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.